Good morning, students. Welcome to your English online lecture of Standard 2nd. Myself, Miss Pooja, and today we are going to learn a new lesson from our English Balbharti textbook. So, students, I request you all to open your English Balbharti textbook of Standard 2nd. So students, here you can see the image of your English Balbharti textbook of Standard 2nd. We are going to learn a new lesson from our English Balbharti textbook. So students, let us begin learning a new lesson from our textbook of English. Open page number 47 of your English Balbharti textbook. Page number 47. Lesson number 3.9. Writing instructions, writing skill. The lesson's name is 3.9 Writing instructions, writing skill. So here, as you can see in this lesson, there are two activities given in your textbook, page number 47. We are going to learn writing skill, writing instruction. So the first activity is how to create soap bubbles. Things you need, method, and below that you can see question number A. Another activity is given for us in writing skill. So we have to write the method of the writing skill. So this is a writing instruction that we are going to learn in our today's lesson. बच्चों, पेज नंबर 47, लेसन नंबर 3.9 राइटिंग स्किल आज हम हमारे ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. राइटिंग इंस्ट्रक्शंस. राइटिंग इंस्ट्रक्शंस Unit 3, Lesson number 3.9, Writing Skill. Now, what is writing skill? In grammar and composition part, writing skill is a separate part where in writing skill there are many topics. One of the topic is writing instructions that we are going to study in our today's lesson. राइटिंग इंस्ट्रक्शंस. बच्चों, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस यानी राइटिंग इंस्ट्रक्शंस हम किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस यानी कोई चीज़ को मेथड वाइज, स्टेप वाइज लिखना. इंस्ट्रक्शंस जैसे आपकी टीचर आपको कोई चीज़ का इंस्ट्रक्शन देती है तो आप उसे पूरा करते हो, उसी तरीके से राइटिंग इंस्ट्रक्शन यानी कोई चीज़ कही गई आपको सिस्टमेटिकली मेथड में वो लिखनी है. तो आज के हमारे लेसन में हम दो एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसमें आपको राइटिंग इंस्ट्रक्शंस आपको लिखना होगा. एक राइटिंग इंस्ट्रक्शन हाउ टू क्रिएट सोप बबल्स मैं आपको बताने वाली हूँ. टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, उसी तरीके से हम हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर ए है राइटिंग इंस्ट्रक्शंस वो हम कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विथ आवर टुडेज टॉपिक. हाउ टू क्रिएट सोप बबल्स. सोप बबल्स, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट सोप बबल्स. बबल्स यानी साबुन के बुलबुले आप जिसे कह सकते हो. साबुन से जो बबल्स फॉर्म होते हैं उससे कहते हैं सोप बबल्स. जब आप हैंड वॉश करते हो, जब आप बात करते हो, सोप रब करते हो तो आप देख सकते हो आपके हैंड्स में जब आप सोप को यूज़ करते हो तभी बबल्स फॉर्म होते हैं. तो आज के हमारे इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सोप बबल्स. ऑल ऑफ अस नो बबल्स.
So bubbles, what are the bubbles? Soap bubbles. Soap bubbles, when we use soap or hand wash in our hand or a shampoo or detergent powder, then from that small bubbles are being created. So in today's lesson we have to see how to create soap bubbles. We are going to see activity is given how to create soap bubbles. So let us see the instructions given in the textbook. How to create soap bubbles. Things you need. So here are the things that you need to create soap bubbles. The first point is half a spoon of detergent powder, half a glass of water. Second, third, one sheet of paper. Fourth, sellotape. And fifth, a spoon to stir. Now here there are 5 things you require to create soap bubbles. We are going to create you soap bubbles and show you. Okay students, so how to create soap bubbles? Here is a small activity that you need to do at your home by following the instructions given in your textbook. You have to create soap bubbles. So the things you need to create soap bubbles is half a spoon of detergent powder. बच्चों, आपको soap bubbles घर पर ये एक्टिविटी खुद से करनी है. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. पहली चीज़ है हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर. आपको आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लगेगा. डिटर्जेंट पाउडर यानी बच्चों हम जो कपड़े वॉश करते हैं उसे कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर. सर्फ एक्सेल, एरियल आपने सुना होगा. आपके मदर जो कपड़े वॉश करते हैं उसे कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर. तो वो डिटर्जेंट पाउडर हाफ स्पून, आधा चम्मच हमें लेना है. सेकेंड है हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर. दूसरी चीज़ है आधा ग्लास पानी, वाटर. तीसरी चीज़ है 1 शीट ऑफ पेपर. एक ब्लैंक पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा पेपर हमें लेना है. फोर्थ है सेलो टेप. सेलो टेप सबको पता है, यस. और लास्ट वाली चीज़ है अ स्पून टू स्टीर. एक चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम सोप बबल को, डिटर्जेंट पाउडर को हम मिक्स करेंगे. जब हम मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से क्या होगा, बबल्स तैयार होंगे. स्टूडेंट्स, व्हेन वी विल स्टीर द डिटर्जेंट पाउडर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑटोमेटिकली द सोप बबल्स विल बी फॉर्म्ड. मेथड. फर्स्ट मेथड यानी हमें इसे कैसे बनाना है. अब हमने देखे थिंग्स यू नीड. अब हमने यहाँ पे देखे कि बबल्स बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अब हम देखेंगे इसे कैसे बनाना है. तो ये हुआ हमारा राइटिंग इंस्ट्रक्शन. बच्चों, यही हमारे लेसन का मेन पार्ट है, राइटिंग इंस्ट्रक्शन. तो हमें कैसे लिखना है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उसे किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा मेथड, हमारा मेन पॉइंट है. पॉइंट नंबर 1, ऐड हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इन द ग्लास ऑफ वाटर. बच्चों, आपने जो डिटर्जेंट पाउडर लिया था, जो सर्फ एक्सेल लिया था पाउडर, उसको क्या करना है, आधे ग्लास पानी में डालना है. पॉइंट नंबर 2, रोल द शीट ऑफ पेपर टू मेक अ स्ट्रॉ. आपको एक शीट लेनी है, पेपर लेनी है, उससे आपको राउंड राउंड आपको क्या करना है, फोल्ड करना है. स्ट्रॉ की तरह उसे पतला सा राउंड करके बनाना है. पॉइंट नंबर 3, फिक्स द स्ट्रॉ यूजिंग द सेलो टेप. उससे सेलो टेप की सहायता से आपको टाइट एकदम स्ट्रॉ की तरह बनना चाहिए. उस तरीके से आपको टाइट एकदम सेलो टेप की सहायता से आपको उसे टर्न करके लपेटना है. पॉइंट नंबर 4, डिप 1 एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ इन द सोप वाटर मिक्सचर.
अब आपको जो आपने स्ट्रॉ बनाया है पेपर का, उसे आपको जो पानी के बुलबुले हैं, बबल्स है, उसके एक एंड में आपको पेपर रखना है। पॉइंट नंबर 5, ब्लो एयर थ्रू द अदर ड्राई एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ। अब आपको दूसरे एंड में यानी दूसरे बाजू से आपको क्या करना है, ब्लो एयर। आप जैसे एयर ब्लो करते हो वैसे आपको मुंह से, आपके माउथ के हेल्प से एयर ब्लो करना है, यानी आप जैसे फूंकते हो कैंडल उसी तरीके से आपको ब्लो करना है। आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 6, यू विल सी सोप बबल्स बीइंग फॉर्म्ड। आप देख सकते हो ग्लास में या पानी में आपने जो लिया है, सोप बबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। So this is the method to create soap bubbles. So every student will do this at home. They will try how to create soap bubbles. So students, you can see creating soap bubbles. Bubbles आप देख सकते हो इस पिक्चर में। Yes, तो ये छोटे छोटे पानी के जो बुलबुले होते हैं उसे कहते हैं बबल्स। तो एग्जैक्टली हमें इसी तरीके से बबल्स पानी में बनाना है डिटर्जेंट पाउडर से। किससे बच्चों? डिटर्जेंट पाउडर से। सो स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन ऑन पेज नंबर 47। बच्चों, अब आपको पेज नंबर 47 पर ध्यान देना है। राइटिंग इंस्ट्रक्शन, हाउ टू क्रिएट सोप बबल्स, रीड एंड अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि सोप बबल्स कैसे बनाना है। अब मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी और आप किस तरीके से सोप बबल्स को बनाओगे। तो आप सभी बच्चों को घर पे ये ट्राई करना है सोप बबल्स बनाने के लिए। थिंग्स यू नीड, मैं और एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ। थिंग्स यू नीड, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, सभी को पता है डिटर्जेंट पाउडर जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड, ये है सारे डिटर्जेंट पाउडर। आप इसे हाफ स्पून लोगे। सेकंड है हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, आधा ग्लास पानी लगेगा। थर्ड है 1 शीट ऑफ पेपर, आपको एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको रोल करना होगा। देन नेक्स्ट है, फोर्थ है सेलो टेप और फिफ्थ है एक स्पून यानी चम्मच। मेथड, ऐड हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इन द ग्लास ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, आधे ग्लास पानी में आपको डिटर्जेंट पाउडर जो आपने लिया है, वॉशिंग पाउडर, वो आपको डालना है। सेकेंड पॉइंट, रोल द शीट ऑफ पेपर टू मेक अ स्ट्रॉ। आपको शीट जो है पेपर की उससे रोल करना है ताकि वो स्ट्रॉ की तरह बन सके। स्ट्रॉ सभी को पता है। पॉइंट नंबर 3, फिक्स द स्ट्रॉ यूजिंग द सेलो टेप। अब आपको स्ट्रॉ को टाइट करना है, फिक्स करना है, किससे? सेलो टेप से। पॉइंट नंबर 4, डिप 1 एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ इन द सोप वाटर मिक्सचर। अब आपने जो पानी बनाया है जिसमें आप बबल्स जिसमें आएंगे, वो पानी जो डिटर्जेंट का पानी आपने हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर जो लिया है और जिसमें आपने वॉशिंग पाउडर डाला है, उसमें आपको ये जो पेपर है स्ट्रॉ का वो आपको एक एंड पर रखना है। ब्लो एयर थ्रू द ड्राई एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ। अब आपको दूसरे एंड से क्या करना है, उसे फूंकना है, हवा से क्या करना है, ब्लो करना है। यू विल सी सोप बबल्स बीइंग फॉर्म्ड। आप जब ब्लो करोगे दूसरे एंड से तो आप देख सकते हो पानी में क्या आएंगे, बबल्स आएंगे। साबुन से साबुन के बबल्स आएंगे। जो डिटर्जेंट पाउडर आपने डाला है उससे जब आप एक एंड से पेपर से जब उससे ब्लो करोगे, मुंह के सहारे से फूकोगे तो क्या होगा, बबल्स। आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो बबल्स आपके फॉर्म हुए हैं, क्रिएट हो गए हैं। So in the same steps you have to do at your home. Now you can see the next activity. Question number A. Now write instruction to make a lemonade. Use the following words and phrases to write the method in your notebook.
थिंग्स यू नीड। नाउ स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से राइटिंग इंस्ट्रक्शन जो हमारे लेसन का नाम है और जो हमें सीखना है कि इसे कैसे लिखना है। अब सेकेंड एक्टिविटी है हमारा लेमनेड यानी आप देख सकते हो नीचे पिक्चर में, लेमनेड यानी नींबू शरबत हिंदी में, ये आपको बनाना है। तो इसके लिए थिंग्स कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी? जूस ऑफ हाफ अ लेमन, आपको नींबू का जूस लगेगा। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक लगेगा। 2 स्पून्स ऑफ शुगर, आपको शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी 2 चम्मच। 1 ग्लास ऑफ वाटर और 1 ग्लास पानी। आपको ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लेमनेड यानी नींबू शरबत बनाने के लिए। अब आप बॉक्स में देख सकते हो ADD ऐड, MIX मिक्स, STIR स्टीर, TAKE take. Now you can see in the box there are 4 words given: add, mix, stir, take. Now you have to write the method how you will prepare lemonade. You have to write the method how you will prepare lemonade in your notebook. You have to write it. As you can take the help example of the first how to create soap bubbles, you can see how method point wise it is written. In the same way we are going to write the method of lemonade. Okay students, बच्चों, आपको जैसे आपने एग्जाम्पल ऊपर देखा कि इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, आपको थिंग्स दिया है, थिंग्स यू नीड, आपको चीज़ें दी गई है। अब हमें खुद से आपको मेथड लिखना है। मेथड यानी आप कैसे उसे बनाओगे। आपको 4 वर्ड्स हेल्प बॉक्स में दिया है, उस वर्ड्स को आपको यूज़ करके आपको मेथड कंप्लीट करना है। सो आई एम गोइंग टू से यू ओरली एंड देन आई विल गिव यू इन द नोट्स। बच्चों, अब मैं आपको ओरली बताऊंगी, उसके बाद हम नोट्स में ये क्वेश्चन नंबर B पढ़ेंगे कि मेथड कैसे लिखना है। थिंग्स यू नीड, अब आपने थिंग्स लिखा, आप मेथड के लिए नाउ फॉर राइटिंग अ मेथड द फर्स्ट स्टेप इज you can see the 4 words 1 2 3 4. In the 4 word, first word we are going to use take a half of lemon juice. Okay, so the first word is take a half of lemon juice is a method 1. Point number 1 will come, take a half of a lemon juice. Point number 2 will come, add a pinch of salt. What we are going to add? Pinch of salt. Then the next is mix 2 spoons of sugar. What we are going to do? We are going to mix then 2 spoons of sugar. Stir the lemonade that you have prepared. Okay, so the next step is stir. First we have to add a lemon juice, then add a pinch of salt, then sugar, then we have to stir it. Stir means mix. तो ये हम नोटबुक में लिखने वाले हैं, जो है क्वेश्चन नंबर A, मेथड, किस तरीके से हमें मेथड लिखना है। So students, here the lesson 47 page number, lesson number 3.9, here it is completed. Now just turn your page to page number 48. Page number 48, read and understand. Fruits are good for health. I like to eat apples, mangoes, grapes, pineapples, pears and guavas. Eating fruits will keep you strong, healthy and active. Here a short paragraph is given. As you can see the paragraph, it is about fruits. Okay, so in the blue color box you can see the paragraph is written where
द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट फ्रूट्स। बच्चों आप देख सकते हो पेज नंबर 48 में ब्लू कलर के बॉक्स में फ्रूट्स के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया है। द नेक्स्ट इज अ सर्कल, अ ब्लू कलर ओवल सर्कल। आप देख सकते हो ओवल शेप में आपको दिया गया है। अ कॉमा इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ सेम सीरीज एंड गिव अ सॉफ्ट पॉज वाइल रीडिंग। अब जहाँ पे कॉमा यूज़ हुआ है वहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमा किस लिए यूज़ हुआ है, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि एप्पल्स, मैंगोस, ग्रेप्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में कहा गया है, तो हम सभी को कॉमा यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, वर्ड्स सेपरेट हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि ये अलग अलग फ्रूट्स है। और वर्ड्स ऑफ सेम सीरीज एंड गिफ्ट अ सॉफ्ट पॉज। और जब हम कॉमा यूज़ करेंगे सेंटेंस में पढ़ने के टाइम पे, कॉमा में हमें छोटा सा पॉज लेना है जब हम उसे रीड करेंगे। तो मैं आपको वापस से रीड करके बताती हूँ कि इसे किस तरीके से आप रीड करोगे। फुल स्टॉप आएगा तो हम थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप होते हैं और कॉमा आएगा तो हम हल्का सा स्टॉप होके सेंटेंस को वापस से रीड करते हैं। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मैंगोज, grapes, pineapples, pears and guavas. Eating fruits will keep you strong, healthy and active. So in this way you have to read it. Let's list down the things in our classroom using commas. Now you can see a picture of a teacher is shown in your textbook पेज नंबर 48। बच्चों आप देख सकते हो एक पिक्चर दिया गया है टीचर का। अब आपको ग्रे कलर का बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको खुद कॉमा डाल डाल के वो सारे चीज़ों के बारे में लिखना है जो आप आपके क्लासरूम में देखते हो। आवर क्लासरूम हैज़ अ ब्लैक बोर्ड, अ टेबल। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, 2 एग्जाम्पल। आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ों का नाम कॉमा डाल के लिखना है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, और भी सारी चीज़ें हैं जो हम लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स कीप अ पेंसिल इन योर हैंड फॉर राइटिंग द थिंग्स। आवर क्लासरूम हैज़ अ ब्लैक बोर्ड, अ टेबल। You can write comma after comma benches. Write the benches spelling in the box. आपको benches लिखना है BENCHES benches, comma desk, desk DESK desk, comma doors DOORS doors. Again the next line, comma windows WINDOWS windows, comma cupboard CUPBOARD cupboard. Then again comma will come, dustbin DUSTBIN dustbin, and charts. So in this way you have to write it in your textbook. Example, our classroom has a blackboard, table, benches, desk, doors, windows, cupboard, dustbin and charts. Okay students, so here we have also studied a short about the punctuation, use of full stop and comma. तो बच्चों हमने यहाँ पे छोटा सा ग्रामर टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इस लेसन के थ्रू हमने कॉमा के बारे में भी हमने पढ़ा। कॉमा और फुल स्टॉप ये आते हैं आपके पंचुएशंस में। पेज नंबर 48 इज completed. So you are going to read this lesson writing instructions. Okay students, and the method of preparing the lemonade
you are going to write in your English notebook as a homework. बच्चों, आपको मेथड ऑफ लेमनेड आपके इंग्लिश नोटबुक में एज अ होमवर्क लिखना है. Method you will write on your own by taking a help of these 4 words, and also I am going to give you in the notes also. So those students who can't write, who are not able to write, I am going to help you all so you can follow the notes and write in your notebook. Thank you students for watching today's lesson 3.9 writing skill. Stay connected for the next English online lecture. Till then, stay safe, stay home. Thank you.